Hello everyone. Um, I have a lot to say, but I don't know where to start. Um, First of all, I would like to congratulate all the students who filmed that very first song that we saw with BMC staff. I think they did it in one day, and it's so impressive. And I really appreciate that uh, these people are shown right now because they are really the foundation of this movement. And it was nice to sort of get introduced to their faces and just to see their uniforms because when you have a face of an individual behind some kind of service and you know them and you understand how they're contributing, you value their work so much more. So these people work incessantly, and I think uh, it's really endearing and courteous of these students to take notice of that. About the film, I have many people to thank. Mr. Murakel, thank you so much to invest in something which is so important for all of us. Aditya, you have single-handedly pulled it off, and everyone who's been a part of it, Isha, all the actors, and Pradeep sir. Uh, I mean, apart from that, I really don't know what I can say to justify me being here. Of course, anything that it needs me to, uh, sort of. I mean, I'm glad that I'm useful in any way. I mean, to be honest, like I can't be more thankful than this opportunity to know that you can do something for your country and it actually can materialize into something so significant uh, is a matter of gratitude. And I think all you students would agree with me that we live for moments like these. And uh, and I think, what do I do to, I mean, contribute for something like this? I'd say growing up, I was a slob. I was really lazy and hated having shower and things like that. And a really dirty person. So my parents were fed up. And honestly, nothing good ever happened in my life during that phase. I would be very honest. Uh, I never made friends, no opportunities came my way. And then I read a lot and a lot about elements and composition, energies, and then I came across this fact that energies are of three types: sattva, tamas, and rajas. So the most superior type is sattva, and that is all about cleanliness, truth, anything which is beautiful in life, artistic. So it starts with a beautiful environment, and that is what Lakshmi is about. You can only attract Lakshmi. It has been given a human form to make it easier for people, simple-minded people like us. But eventually, Lakshmi is an energy which you can only attract if you have sattvic energy. So if you have clean environment, you have that energy. If you have that energy, you have clean environment. It's vice versa. So I think ever since I used these techniques in my life changed. So now I love to have shower. I love to keep my environment clean, and I make sure I never litter. I mean, I swear to God, I must have not littered for the past 12 years. Wow, Yeah. very nice. It's not the most convenient thing. Every time you eat an apple, you tuck it in your pocket. You have a sandwich, you push it in your big Dior bag. You do anything which sort of, you don't litter. And to avoid that, you have to make small adjustments. Then it's all about habit. But you can culminate you can go about making good habits. And I request everyone that, we can, if not for, just not just country, this earth is ours. And if we have good environment around us, it's going to benefit us. And how Mr. Bachchan said, कि साफ भारत समृद्ध भारत, तो हम उसमें विश्वास करते हैं और सबका बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you. Karina, I would just request you to remain on stage. I'd also like the other two actors to please join Kangana. And I would like to call Mr. Anil Murarka on stage, who's actually put this beautiful film together. Anilji, please, can you join us on stage, please?
Ji, why don't you just say a few lines? Me? दोस्तों माइक दिया है आदित्य ने भी कुछ बोलने के लिए. I'll rather speak in Hindi if you all permit me. Well, ये सफाई किसी ने मुझे कहा just about a week back कि यार आपने कुछ शॉर्ट फिल्म्स बनाई हैं, स्वच्छ भारत को लेके क्यों सोचा आपने? ट्रस्ट मी, वहाँ कुछ दिनों के तार जुड़े हुए हैं. जैसे अभी कंगना जी ने कहा, उन्होंने 12 साल से कुछ लीटर नहीं किया. बट मैं बिल्कुल निष्खौफ यहाँ बोल रहा हूँ कि मैंने कुछ गंदगी 2 साल पहले भी की थी. वी वर ऑन दी पूना एक्सप्रेस हाईवे. आई वाज ड्राइविंग द कार. कुछ थोड़ी दूर पे जाके मेरा बेटा मेरे बिल्कुल बाजू में बैठा था. पापा कैन यू टेक अ यू टर्न प्लीज? यार व्हाट आउट ऑफ द ब्लू आर यू टेलिंग मी टू टेक अ यू टर्न हियर? काफी लंबा है दोस्त, वापस घूमना. नहीं नहीं पापा, आप यू टर्न लीजिए. ठीक है, यू टर्न लिया. क्योंकि बच्चों के आगे तो सब कुछ, इट्स लाइक यू गाइस आर द पावर हाउस, द यूथ इज द पावर हाउस टुडे. मैंने यू टर्न लिया गाड़ी का. उसने वापस गाड़ी जब मोड़ी, गाड़ी लेके मैं वापस आगे बढ़ा, उसने गाड़ी कहीं रुकवाई. ही गेट्स आउट द कार. मैंने खुद वहां पे एक केले का छिलका फेंका था, वो उसको उठाता है और उसको अपनी गाड़ी में लेके, गाड़ी में मैंने डिस्पोजेबल बैग्स रखी है उसमें डाल देता हूँ. मैंने कहा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, मतलब बेटा ये करके क्या हासिल कर लोगे और कितनी गंदगी बाहर? बट स्टिल ही इंसिस्टेड, पापा गंदगी कम से कम हम नहीं करें. लेट अस इंश्योर दैट वी डोंट लिटर. लेट पीपल डू इट, बट ग्रेजुअली वी विल सी अ इंडिया वेयर वी बीन टॉकिंग अबाउट इंडिया एज अ सोने की चिड़िया. Yes, we dream of that in the years to come. Thank you so much, my friends. Thank you. Can I also request Professor Dr. Uday Salunke, sir, to please also join the other esteemed guests on stage for a quick photo op, please? Thank you. And while we are on that subject, with the media, also want to have any questions, please? So, thank you. Yes. Yeah, sir. Thank you, guys. Can we have a few questions for the media, please? Thank you. Can I also request our media friend photographers to please have a seat down here, if you can please be seated, otherwise the people behind are not being able to see. It's a request, please. Thank you, friends. Thank you, please. Guys, please. Thank you. Can we have quick questions, please, from the students as well as the media? Yes, Ravi. हम लोग सुपर पावर बनने की बात करते हैं कि इंडिया सुपर पावर बनेगा जल्द ही. इस तरह के कंपैरिजन होते हैं अमेरिका चाइना से. लेकिन 21st सेंचुरी में भी हम इस तरह की बातें करते हैं कि साफ़ सफाई रखना चाहिए. तो आपको क्या लगता है कि या जो लोगों में अवेयरनेस नहीं है साफ़ सफाई के बारे में, आपको क्या लगता है हम इतने पिछड़े हुए नहीं हैं क्या कि 21वीं सदी में भी साफ़ सफाई के बारे में अभी भी हम बात कर रहे हैं? जो 100 साल पहले गांधी जी बोलते थे, आज भी हम वही बोले जा रहे हैं, वही बोले जा रहे हैं और हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं. इस बारे में आपका थॉट क्या है? वेल ये बात सही तो है कि थोड़ा तो एम्बैरेसिंग हो जाता है जब हम किसी भी देश में जाएं, चाहे उनकी
प्रगति हो चाहे नहीं हो, कैसा भी देश हो, लेकिन एक बेसिक जो हाइजीन है वो इतना जैसा इंडिया में देखने को मिलता है शायद ही किसी दूसरे देश में देखने को मिला जाए, क्योंकि काफ़ी गंदगी होती है देखने में। और सिर्फ बड़े शहरों में ही नहीं, छोटे शहरों में भी यही हाल है। तो आई रियली डोंट नो इसका क्या रीज़न हो सकता है। कई चीज़ों में हम लोग काफ़ी पीछे रह गए हैं, लेकिन अब उसके बारे में ना सोचते हुए, उस पर ना ज़्यादा विचार करते हुए उसके बारे में क्या किया जा सकता है, उस पर विचार करने में ज़्यादा हमारी भलाई है। कैसे पीछे रह गए, क्यों पीछे रह गए, वो तो उसमें तो कई रीजंस हो सकते हैं, मगर हमें अब पीछे नहीं रहना है। क्योंकि और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इतने बेसिक लेवल पे जो है इस चीज़ को पकड़ा और इस कमज़ोरी को डायरेक्ट अटैक किया। और जो हमें, ठीक है, हम लोग बहुत ही बड़ी डेमोक्रेसी हैं, जिस तरह से हमारी इकोनॉमी ग्रो हो रही है, आज हम लोग समाज में बहुत ही एक उन्नत जो देश है, जो कि इज बिकमिंग अ वेरी बिग पावर लाइक यू सेड, उस तरह से देखे जा रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग सफाई नहीं रखेंगे, चाहे वो अपने वातावरण की हो या अपने चरित्र की हो, हमें इज्जत नहीं मिलेगी, उन्नति चाहे मिल भी जाए तो हमारे लिए इज्जत भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी की उन्नति। एक सवाल और फिल्म से जुड़ा हुआ जो आपने लुक we लिया can है। we just have one question, please. एक सवाल फिल्म से जुड़ा हुआ कि आपने जो लुक लिया है, हमने गॉडेस के अवतार में कभी आपको नहीं देखा, तो हाउ कितना कन्विंस करने की जरूरत पड़ी आपको, कितना आपके लिए कंफर्टेबल था, और जब आपने खुद को देखा इस तरह से तो आपका रिएक्शन क्या था? मेरे लिए शुरू में तो थोड़ा सा एक अलग सा थॉट है इनका। और आप एक आई मीन जिस इन्वायरमेंट में मैं पली बड़ी हूँ उसमें हमेशा ही हमने, चाहे वो गॉडेस लक्ष्मी हो चाहे गॉडेस दुर्गा हो, उनकी हमेशा ही बहुत वर्शिप की है, बहुत ही साधना आराधना की है। तो उनके उस रूप को धारण करना मेरे लिए काफ़ी एक अलग सा अनकंफर्टेबल सा एक कॉन्सेप्ट था। लेकिन फिर जैसे कि मैंने कहा कि एक कलाकार होने के नाते हमारे लिए वो वही एक किरदार के कॉस्ट्यूम है, जैसा कि हम लोगों ने सबने मिलके मेहनत की है। तो उसको उस नज़र से देखना मेरे लिए एक अलग एक एक्सरसाइज थी, लेकिन वो की। और फिर जब मैंने अपने आप को देखा तो आई थिंक ये पूरा जो हमारा जितना भी टीम है उन्होंने मिलके ये एक प्रदीप सर को उनका सबसे ज़्यादा जो भी है क्रेडिट जाता है। वही लक्ष्मी जी का मुझे पल्लू ऐसे चाहिए, उनका मुझे क्राउन ऐसे चाहिए, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन दिया है। कंगना, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर किसी स्कूल में कितने दिनों के बाद आई हैं, और कैसा लगा जब आपने देखा बच्चे नाटक कर रहे हैं और आप बैठी हैं, स्कूल का माहौल, क्या कुछ याद आया? आप लोग क्यों हंस रहे हैं? आप लोग बच्चे नहीं हैं। जब तक आप लोग पढ़ रहे हैं तब तक बच्चे ही होते हैं। वेल याद आई हूँ, शायद किसी प्रमोशन के लिए गए हों कॉलेजेस में, लेकिन इन जितना अच्छे से ये लोग एक्ट कर रहे थे, हमें याद है हम लोग भी बचपन में करते थे। बचपन में छोटे होते थे, आपके जितने बड़े बच्चे नहीं थे, छोटे बच्चे होके हम लोग जब करते थे, हम लोग तो कितना लाउड एक्टिंग करते थे, बहुत ज़्यादा। लेकिन आप लोग तो इतना सटल, इतना अच्छा, और जिस तरह से आप लोगों ने म्यूजिक भी यूज़ किया है, जिस तरह से आपने किरदार यूज़ किया, वेरी नाइस परफॉर्मेंसेस। और मैं फिर से उससे बहुत प्रभावित हूँ जो बीएमसी के वर्कर्स के साथ जो वीडियो बनाया है, वेरी नाइसली लिट, वेरी नाइसली शॉट। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके फ्यूचर के लिए। I think a round of applause to Wellinger, guys. Guys, one day this is what they put this together. It's a great job. आपने कभी ये सोचा था कि मैं लक्ष्मी माँ बन के बाइक में बैठ जाऊंगी, मतलब बाइक में सवार होके जाऊंगी, ऐसा? मतलब एक बिल्कुल अलग सोच है और एक अलग वीडियो है। मुझे पहले प्रदीप सर का मैसेज आया, कहता तुम्हें बाइक चलानी आती है? मैंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं आती। तो कहते ठीक है, तुम्हें पीछे बिठाएंगे क्योंकि लक्ष्मी जी का वाहन कोई ना कोई चलाते ही है। और मैंने कहा बाइक क्यों, फरारी क्यों नहीं? अगर लक्ष्मी जी है उनके पास फरारी होनी चाहिए। तो कहते नहीं, तुम्हें चेक नहीं करना है कहाँ पे गंदगी है कहाँ नहीं। मैंने कहा राइट, ये ठीक है। तो बाइक वॉज द मोस्ट कन्वीनियंट व्हीकल फॉर लक्ष्मी जी।
तो इन दिनों में ऐसा हो जाता है कुछ भी करने से पहले बहुत सोचना पड़ता है। बाइक में बैठी है तो कुछ लोग जो आजकल बड़े संस्थाएं बनी है कि गॉड को बाइक में क्यों बैठा दिया, लक्ष्मी तो कमल में बैठती हैं। तब मतलब नहीं, वही मैंने कहा आपको कि हम लोगों का कॉन्सेप्ट यही है कि लक्ष्मी जी जो हैं वो जिस तरह से मैंने कहा कि वो समृद्धि वहीं पे है जहाँ पे सफाई है। तो उनको ये बाइक इसलिए ज़्यादा कन्वीनियंट है बिकॉज ताकि वो हर जगह देख सकें। तो आई थिंक दैट वाज द कॉन्सेप्ट। और ये बाइक फरारी की ही हार्ली डेविडसन थी, तो वही केपेबल दैट क्वालिटी बाइक थी, इट वाज नॉट एनी अदर बाइक। एनीवे, कैन वी आल्सो प्लीज रिक्वेस्ट एवरीवन टू हैव जस्ट वन क्वेश्चन प्लीज, सो दैट अदर्स कैन गेट अ चांस। इट्स अ रिक्वेस्ट प्लीज, थैंक यू। की बात करें तो आपने अपने करियर के इनिशियल डेज में अरविंद गौड़ से काफ़ी कुछ सीखा है। उनके टैलेंट के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि आप जैसी टैलेंटेड एक्ट्रेस को उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है। बहुत जल्द वो एक इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग भी देने वाले हैं, तो उनके लिए कुछ वो यहाँ आने वाले हैं, क्या कहा? वो आइजोम्स में ट्रेनिंग देने वाले हैं, अच्छा अच्छा। तो उनके उनके बारे में आपसे कुछ जानना चाहेंगे। अरविंद गौर जी एक्चुअल में मेरे एक्टिंग गुरु हैं, और जब मैं दिल्ली में थी तो उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया था। उनके साथ मैंने अस्मिता ग्रुप के साथ कुछ प्लेस भी किए हैं, और उस वक्त उन्होंने मुझे ट्रेन भी किया था एक्टिंग में, तो उनको मैं अपना गुरु मानती हूँ। सबसे पहले ये एक सब्जेक्ट नहीं है। जैसे बच्चन साहब ने कहा कि सफाई अपने दिलों में, अपने जहन में इस तरीके से रखें कि खाली घर पे सफाई रखना ज़रूरी नहीं है, इट हैज़ टू रीच आउट एवरीवेयर। ओमकार साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, दुरुस्त फरमाया। आज अक्रॉस द वर्ल्ड जब हम ट्रेवल करते हैं, वाई एनीबडी एल्स, आज आप ट्रेवल करें कि मैं करूं, वहाँ पे 100% ये अपना एक प्रोटोकॉल रहता है कि आपने च्युइंगम भी खाई है तो आपकी खुद की च्युइंगम खाई हुई भी आप जेब में डालते हो उसको टिश्यू पेपर में लपेट के। तो वो अवेयरनेस यहाँ लानी ज़रूरी है। आज मोदी जी ने अपने को एक जरिया बताया कि भाई स्वच्छता रखो, बट ये जैसा कुछ देर पहले अपने पत्रकार दोस्त ने कहा कि ये चीज़ बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, बट इट्स नेवर लेट, इट्स येट द बिगनिंग। वी हैव टू कम फॉरवर्ड टुगेदर टू मेक इंडिया दैट शाइनिंग स्टार दैट द वर्ल्ड शुड लुक एट यू। एंड दैट्स द रीजन आदित्य सर ने जिस तरीके से मुझे पुट अप किया, आई थॉट यस लेट्स डू इट फॉर श्योर। Kangna, hi. Kangna, first of all, let me start off with a compliment. Looking absolutely pretty in a sari. थैंक यू। Kangna, you're referred to as the queen of Bollywood. You know, Bollywood to many is the city of dreams, the world of dreams. But there is also a dark, dirty side of Bollywood that comes to fore time and again. Since we are on the topic of cleanliness, how much cleanliness do you think Bollywood needs? आप कौन सी क्लीनलीनेस की बात कर रहे हैं? फिर से अपना प्रश्न दोहराइए। So you mean to say it's subjective? There is absolutely no need, is it? Is it an extremely clean world? इन वर्ल्ड, देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमें ऐसे किसी एक सोसाइटी को ऐसे सेग्रीगेट किया जा सकता है कि ये इंडस्ट्रियल वर्ल्ड है, या कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, ये एजुकेशन वर्ल्ड है, ये बॉलीवुड है। ऐसा नहीं है। अगर आपको वैसी सेग्रीगेशन चाहिए तो फिर पासपोर्ट लगेगा बॉलीवुड में आने का। तो ये बॉलीवुड इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, और जिस तरह से हर समाज में बहुत ज़्यादा जैसे आप देखते होंगे, अगर हम स्वच्छ भारत अभियान की बात करें तो ऐसी आपको लोकेलिटीज़ दिखेंगी इंडिया में जो कि एक्सट्रीमली क्लीन है, जहाँ पे बहुत अच्छे साफ रहने वाले सुथरे, मैं सिर्फ लग्जरी की बात नहीं कर रही हूँ, ऐसे भी कुछ गांव हैं, विलेजेस हैं जहाँ पे बहुत सफाई लोग रखते हैं। और ऐसी भी जगहें हैं चाहे वो कितने भी महंगे बिल्डिंग्स हो, इतनी गंदगी डाल के रखते हैं। द सेम वे इन बॉलीवुड ऑल्सो दे आर वेरी नाइस पीपल, and then there are people who are not that nice. Also, Just a request, last two questions, please. We don't also have too it's much time. Last Independence two Day. questions. एक wish चाहूँगा मैं आप सभी लोगों से, wishing India on its 70th Independence Day. Wishing India for Independence Day. Yeah. Okay. You want us to say it together? Yeah, for the cameras. Your wish and what does freedom mean to you? If you could just elaborate on that. So I think we should all say it together. Okay. Wishing Wishing India India a very happy Independence Day.
जय हिंद। जय हिंद। No, so can we please have someone who's not asked a question? Please? Yeah, hi. I'm sorry. Can I ask a question? Yes. Hi, Kalna. This is Arpita here. आप छोटे शहर से हैं, छोटे शहरों में उतना रूल्स एंड रेगुलेशंस लोग सोचते भी नहीं है कि एग्जिस्ट करते हैं, एंड पर्टिकुलरली जो भी शुरुआत होती है किसी नई चीज़ की वो यूथ से होनी चाहिए, प्रॉब्ली दैट्स व्हाई यू हियर। आपने बहुत छोटी उम्र में अपना करियर शुरू किया था, प्रॉब्ली एट द एज ऑफ 17। 15-16 ईयर ओल्ड की कैफियत कुछ बता सकती हैं क्लीनलीनेस को लेकर छोटे शहरों में कैसे होती है, और आपकी लाइफ में ये चेंज कब आया? मैं जिस एनवायरनमेंट में मैं पली बड़ी हूँ वहाँ पे जो जिस तरह का माहौल था, मेरे घर में इतना पूरे घर की इतना घस घस के सफाई करते हैं हर वीकेंड पे, और उसका सारा कचरा घर के बाहर फेंक देते हैं। तो इसी तरह से मेरे पापा जब हमने शुरू में एक चैप्टर पढ़ा था, मैं 8-9 साल की थी, कि कैसे जो गंदगी बाहर फेंकता है वो बेसिकली गंदा इंसान होता है। तो आई वॉज वेरी अफेक्टेड विद दैट थिंग। फिर आई रिमेम्बर कि एक बार मेरे पापा गाड़ी साफ कर रहे थे, तो उन्होंने सारे चिप्स के पैकेट गाड़ी से बाहर निकाल के वो जिसमें कार्पेट्स को साफ कर रहे थे। सो ऑब्वियसली मुझे लगा कि किताबों में लिखी हुई बातें तो एकदम बकवास है, क्योंकि पापा तो कितना इजीली गाड़ी को साफ कर दिए, और फिर मैंने सोचा नहीं कि बाहर व्हाट हैपन टू द एनवायरनमेंट। सो आई ग्रू अप इन दैट एनवायरनमेंट, बट जैसे कि मैंने कहा कि ग्रोइंग अप मेरी आदतें और ख़राब हो गई। आई वॉज वेरी लेजी, और मुझे नहाने से बिल्कुल नफरत थी। और जब भी मेरे नहाने की टर्न होती थी, आई यूज टू बी वेरी हैप्पी, क्योंकि आई वॉज इन अ जॉइंट फैमिली कि कोई वो टर्न ले ले। एंड आई बिकेम quite a slob, and like I said, nothing good happened to me in that time, you know. और उसके बाद जैसे जैसे मेरा इंटरेस्ट चेंज हुए, और जिस तरह से मैंने कहा कि मैंने बहुत ज़्यादा योग में इंटरेस्ट लिया, और मैंने वेदांता की स्टडी की, और मैंने बहुत ज़्यादा स्वामी विवेकानंद को फॉलो किया, तो उसमें जब भी मैंने एक चीज़ जो सबसे पहले अपनाई, वो कि मैं कैसे अपनी एनर्जीज को, कैसे अपने आप को अपलिफ्ट करूं, और मुझ में क्या क्या कमियां हैं जिनको मैं सुधार सकती हूँ। तो वो सबसे पहला, उसके कई लेवल होते हैं, जैसे कि एक आपका एक्सटर्नल होता है और एक इंटरनल एनर्जी क्लीनलीनेस होती है, यू नो। तो व्हेन आई स्टार्टेड विथ एक्सटर्नल क्लीनलीनेस। जैसा कि मिस्टर बच्चन ने कहा कि जहाँ सफाई होती है वहाँ पे समृद्धि होती है। तो आई थिंक वो एक बेसिक एक्सरसाइज जब मैंने अपनाई, तो मेरी ज़िंदगी की चीज़ें चेंज होने लग गई। अब और जिस तरह से आप अपने इन्वायरमेंट पे काम करते हैं, उसी तरह से आप अपनी आदतों पे काम करते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि कैसे आप रिस्पॉन्सिबल रह सकते हैं, किस तरह से चीज़ें ना फेंके, किस तरह से अपने, उससे आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपका खुद का एनवायरनमेंट कैसे बदलने लगता है, आपकी खुद की चीज़ों में कैसे फ़र्क आता है। और जैसा कि हमने फिल्म में दिखाया कि डोंट लेट हर गो, आपको खुद देखेंगे आप जिस तरह से सफाई रखते हैं, आप अपने इन्वायरमेंट को, अपने थॉट्स को, अपने स्पिरिट को, जिस तरह से आप अच्छी एनर्जी रखते हैं, अपलिफ्टेड रखते हैं, तो आपकी चीज़ें भी उसी तरह से अच्छी होती जाएंगी। तो आप इस चीज़ को अपना के देखिए, और मुझे पता है कि सभी को ये कलेक्टिवली that universal, that soul that we all have running in us, that energy. So we have to sort of see Earth as a part of us, and then Earth will see it as a part of us as its extension. So let's adapt to that attitude. I know it sounds very philosophical, but to make it really to simplify it, just don't let her go. Just keep your environment clean, and just be happy, and Yeah, don't let her go.